Hello friends, welcome to TechCube Gate class. My name is Professor Vivek Singh Rathore and I am Assistant Professor in Government Engineering College, Bilaspur, Chhattisgarh. And in this video lecture series, I am dealing with Signals and System subject, and in which today is I think 27th lecture. And in module 4 we are dealing with Fourier transform for aperiodic signals, and till now we have completed 2 lectures, in which in the last lecture, if you have seen the last lecture, I have completed the Fourier transform of unit step signals, some standard signals we have seen, gate pulse we have seen, we have also seen the frequency shifting property and time shifting property. Okay, so till now we have completed this much. Now we'll move on and we'll see more properties of Fourier transform, and we'll see more Fourier transform for standard signals like that of triangular pulse, trapezoidal pulse, and sine pulse, cosine pulse, and we shall also see some property like duality property. Okay, and moreover we'll see some more properties like time scaling and frequency scaling property. So let's get started in our this lecture. If you have not seen the earlier lecture, please go and see the previous lecture. The link of that lecture would be in description box, you can find it there. So let's get started with our topic. Okay, so let's get started. First of all, we will see our time scaling property. This is very important property of Fourier transform, time scaling, and as well as we'll see frequency scaling also. So we'll see time scaling and frequency scaling property. Okay, fine. Okay, so see, time scaling means in time axis we are scaling it, either compression or expansion. Okay, both we can do. So if at all your ft signal is there, and you're taking Fourier transform, you are getting f of omega, let's suppose. Okay, now if you are doing scaling with respect to time, like let's suppose at is there, maybe a is greater than 1 or a is less than 1, whatever the case may be, your f omega will be your frequency transform. If you will take of f of at, you will get f of omega by a and 1 by mod of a. Okay, this is same as that of Fourier series, which we have seen in Fourier series also, this property. So a maybe whatever a may be, like f of 2t if you do, or f of minus 2t if you do, you will get the transform as 1 by 2 only, f of omega by 2. Okay, so this is actually your Fourier transform of time time scaling property in Fourier transform. So this leads to a conclusion that see, if you are doing time scaling with 2, what you are getting omega by 2 in the frequency domain. If you are doing time scaling by half, okay, what you will get? You will get f of omega by half means 2 omega, and 1 by half means 2 here. So if you are scaling with half, means less than 1 value, you are getting 2 omega. So what conclusion we get? That if we are doing compression, okay, compression इन टाइम डोमेन, अगर हम टाइम डोमेन में कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे टी को हम लोग टी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब अगर आपको याद होगा, अगर आपका f ऑफ टी है, मान लीजिए f ऑफ टी आपका कुछ ऐसा है, -2 से 2, और आपने क्या कर दिया, f ऑफ 2t ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा, मतलब वो कंप्रेस हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इफ वी आर डूइंग कंप्रेशन इन टाइम डोमेन, अगर हम कंप्रेशन कर रहे हैं टाइम डोमेन में, so what we are getting expansion in frequency domain. So if we are doing compression in time domain and we are taking Fourier transform, we will get expansion in frequency domain. So
दिस रूल यू शुड रिमेंबर, बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है कि टाइम डोमेन में कंप्रेशन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या अंतर आता है। तो आपको ये टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी से आपको ये समझ जाना है कि एफ ऑफ टू टी करते हैं तो वो आप टाइम कंप्रेशन करते हैं, या फिर अगर आप इसको दूसरे भाषा में करेंगे कि अगर आप एक्सपांशन करेंगे जैसे एफ ऑफ हाफ टी आपने किया है ना, एफ ऑफ हाफ टी तो एक्सपांशन होता है, तो एक्सपांशन इन टाइम डोमेन करेंगे और उसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म लेंगे आपका, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, कंप्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, चाहे आप इसमें कंप्रेशन करते हैं या फिर आप एक्सपांशन करते हैं, जस्ट उसका उल्टा वहां पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो जाएगा। और सेम चीज फ्रीक्वेंसी में अगर आप कंप्रेशन करते हैं तो आपका एक्सपांशन होगा टाइम डोमेन में, जस्ट ये उल्टा चलता है एक दूसरे का, ठीक है। तो आपको टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी तो आपको मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल समझ में आ गई। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देके इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे होता है अगर आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहें। देखिए, अगर आपको मान लीजिए एक सिग्नल दिया हुआ है, ऐसा कुछ सिग्नल है, ठीक है, ये आपका ऐसा सिग्नल है, ठीक, ये है आपका, लेट सपोज कि आप 0 से 4 तक ये सिग्नल है, ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू आपकी 1 है, ये सिग्नल है और इस सिग्नल को आपको बोला गया है कि ये सिग्नल एफ टी है। फिर आपको बोला जाता है कि आपको एक सिग्नल है, लेट सपोज ये और ये है ना, ये सिग्नल है, -3 से -2 की वैल्यू है और ये वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है, -2, ये मान लीजिए g ऑफ t है, ठीक है। तो अब आपको ये बोला जाता है कि इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर f ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है f ऑफ ओमेगा, तो फिर g ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, ये आपके क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हमको अभी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकालना है कायदे से, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ ऑफ ओमेगा है, जो भी है इसका वैल्यू वो एफ ऑफ ओमेगा है, तो आपको जी ऑफ ओमेगा बेसिकली निकालना है। तो देखिए अगर आप g ऑफ t की बात करेंगे, g ऑफ t को, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि g ऑफ t अगर आप f ऑफ t के टर्म्स में देखेंगे तो f ऑफ t, जैसे ये f ऑफ t क्या है, 0 से 4 है ना, आपका जो विड्थ है उसका 4 है और इसका जो विड्थ है -2 से -3 1 है। तो कहीं ना कहीं जो g ऑफ t है, ठीक है, अगर मैं इसको आपको ऐसा लिख लेता हूँ, f ऑफ t को आप ऐसा कर सकते हैं कि, या फिर आप सॉरी g ऑफ t को आप ऐसा लिख सकते हैं, g ऑफ t को आप ऐसा लिख सकते हैं कि f ऑफ t में क्या कर दिए हम, पहले तो f ऑफ t को कंप्रेस कर दिए ताकि वो 0 से 1 के रेंज में आए, इसका विड्थ 1 हो जाए, तो हम लोग इसको f ऑफ 4t कर सकते हैं। जैसे f t में अगर अपन कंप्रेशन लगाते हैं 4 का, तो क्या होगा कि ये हर वैल्यू पे 4 से डिवाइड होता चला जाएगा और ये वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा, है ना। तो f ऑफ, अगर अपन सिर्फ f ऑफ 4t करें तो आपका कैसा सिग्नल मिलेगा, आपको सिग्नल यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, कुछ ऐसा 0 से 1 तक ही जाएगा, ये मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो f ऑफ 4t करने से ये फायदा मिलेगा। अब आपको ये सिग्नल चाहिए है ना f ऑफ t से, तो आप क्या करिएगा कि इस सिग्नल को आप शिफ्ट कर दीजिए। कितना शिफ्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ये सिग्नल को हम लोग शिफ्ट करते हैं इधर, अगर 3 से हम लोग एडवांस शिफ्ट करते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका आएगा, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, टी में ही सिर्फ शिफ्ट करना है, 4t में शिफ्ट नहीं करना है, टी में ही शिफ्ट करना है, क्योंकि कोई भी चीज जब ऑपरेशन होता है तो हमेशा टी में होता है, ठीक है। तो आप 4t पहले कर लिए, अब आपको क्या करना है, टी ऑफ +3 करना है ना। टी ऑफ +3 करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो सिग्नल है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये टोटल जो सिग्नल है ऐसा आ जाएगा, 3 शिफ्ट हुआ होगा तो ये होगा -3 और ये -2। अब आपको चाहिए ये सिग्नल, तो आप इसका उल्टा कर लीजिए, तो आप क्या कर लिए, इसमें माइनस साइन लगा दीजिए, तो फाइनल जो हमारा सिग्नल आएगा वो आपका ये वाला सिग्नल आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम इसको मैं फिर से अच्छे से लिख लेता हूँ कि अगर आपको g ऑफ t चाहिए, g ऑफ t, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ g ऑफ t इन टर्म्स ऑफ f ऑफ t, व्हाट यू विल डू अ मैग्नीट्यूड रिवर्सल, you will do of टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी एंड एज वेल एज विल डू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नाउ अगर इसका ब्रैकेट हम खोल दें तो ये आ जाएगा 4 3 12, तो हम टोटल अगर ऐसा करते हैं तब हमको ये टोटल g ऑफ t मिलेगा।
अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको बोलता है कि g ऑफ ओमेगा आपको निकालना है बेसिकली, लेकिन आपको पता है कि f ऑफ t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो f ऑफ ओमेगा होता है, तो f ऑफ -4t प्लस 12 का क्या होगा। तो अब देखिए आपको थोड़ा सा टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग, मैग्नीट्यूड रिवर्सल सब प्रॉपर्टी आपको लगानी होगी इसमें, तो चलिए लगा के देखते हैं। ठीक है, तभी इसको अभी अब हम लोग क्वेश्चन मार्क मानते हैं और हम निकालते हैं f ऑफ t का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ ओमेगा होता है तो f ऑफ -f ऑफ 4t प्लस 12 का क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, ये अभी हमारे पास उद्देश्य है खोजना। तो हम क्या करते हैं, देखिए धीरे धीरे एक एक बाय एक स्टेप लेके चलते हैं, है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ t प्लस 12 का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। अगर f ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ ओमेगा है तो f ऑफ t प्लस 12 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, f ऑफ ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा 12, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ 4t प्लस 12 का हम निकालते हैं, तो f ऑफ 4t प्लस 12 में क्या होगा कि जो भी आपने टाइम स्केलिंग किया है तो सामने तो 1/4 आ जाएगा, है ना, सामने आपको 1/4 आ जाता है, और आप क्या करते हैं जो भी f ऑफ ओमेगा बाय 4 ले लेते हैं, और जो भी ओमेगा होगा वहाँ पे अपन बाय 4 कर लेंगे, तो e टू द j ओमेगा 12/4, है ना। इससे आपका यहाँ पे ये आ गया कि देखिए उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए बेसिकली अच्छा ये वैल्यू है -2 की, इसको हम लोगों को -2 घटाना है, तो यहाँ पे -2 भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं -2, और हम -2 को करना है, तो ओवरऑल अब आपको यहाँ पे करना है -2 ऑफ f ऑफ 4t प्लस 12 निकालना है। तो आपको क्या कर सकते हैं, -2 यहाँ पे कर लीजिए, -2/4 f ऑफ ओमेगा बाय 4 e टू द पावर j, ये 4 3 जा 12 होता है, तो e टू पावर j ओमेगा 3 आ जाएगा, है ना। और ये भी कट गया, तो फाइनल आंसर आपका आ गया g, क्योंकि g टोटल इसका हम निकालना चाह रहे हैं g ऑफ ओमेगा, तो g ऑफ ओमेगा क्या हो गया, g ऑफ ओमेगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, g ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू हो गया -1/2 f ऑफ ओमेगा बाय 4 e टू द पावर j 3 ओमेगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसान है, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म की, तो आपको निकालना इतना आसान हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है, बस प्रॉपर्टी का तो हमको यूज करना है। तो सेम आपको अगर ये समझ में आया होगा, तो आपको अब मैं जैसे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी बताया, वैसे ही आपको मैं फ्रीक्वेंसी स्केलिंग प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्केलिंग प्रॉपर्टी भी हूबहू टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी जैसा ही होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपका f ऑफ ओमेगा है, उसका अगर आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो आपको f ऑफ t मिलता है ना। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी में स्केलिंग करते हैं, लेट्स सपोज a ऑफ ओमेगा करते हैं, a मे बी ग्रेटर देन 1, a मे बी लेस देन 1, कुछ भी हो, आप उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो आपको वही मिलता है 1/mod ऑफ a f ऑफ t बाय a, जैसा आपको वहां पे दिख रहा था टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी में। तो ऐसा ही हुआ ना आखिर में, अगर आप यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 1 करेंगे तो आपका कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन विल लीड टू एक्सपांशन। तो अगर आपका यहाँ पे भी हम ये लिख सकते हैं कि कंप्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंप्रेशन कर रहे हैं तो आपका टाइम में क्या हो रहा है, एक्सपांशन, एक्सपांशन इन टाइम डोमेन, है ना, टाइम डोमेन में आपका एक्सपांशन हो रहा है। और सेम चीज हो रहा है कि अगर आप एक्सपांशन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपांशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो आपको क्या मिल रहा है, कंप्रेशन, कंप्रेशन इन टाइम डोमेन। तो ये आपको इतनी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है ना, इतनी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। ठीक, अब आपको मैं टाइम शिफ्टिंग और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को मैं पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा ही दिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, एक आध कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो सके कुछ वो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और अच्छा फायदे है। तो आपको एक क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ, चलिए आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए, एक सिग्नल आपको दिया है f ऑफ t, और आपको बोल रहा है e टू द पावर -5 ऑफ mod t इंटू साइन ऑफ मान लीजिए 10t दिया है ना। ये आपको दिया है क्वेश्चन में, और आपको बोलता है कि इसका भैया फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो आप मेरे ख्याल से उम्मीद है मेरे को कि आप शायद निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन को मैं करके आपको शायद बताऊं। देखिए बेसिकली ये एक सिग्नल है और ये एक सिग्नल है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रखा है। इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, पहली बात तो ये है कि आपको ये पता है कि f ऑफ t अगर
फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा देता है, तो अगर आप कोई भी सिग्नल में एफ ऑफ टी में अगर आप साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन ऑफ लेट सपोज ओमेगा टी कुछ भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो होगा क्या, मान लीजिए साइन ऑफ ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ओमेगा तो अपन ले ही रहे हैं, तो आपका क्या होगा, कोई भी सिग्नल में अगर आप साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड उसका 1/2j हो जाता है, और आप क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट करते हैं, माइनस एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में भी देखी, ठीक है। अगर आप यही सेम सिग्नल को एफ ऑफ टी को कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, एम्पलीट्यूड का आधा और एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है। ये हम लोगों ने मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में या उसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको प्रूफ किया है कि कैसे ये आता है, e टू द पावर j ओमेगा नॉट t प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t डिवाइडेड बाय 2 का जो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो कुछ ऐसा मिलता था। तो यहाँ पे आपको ये दो प्रॉपर्टी आपको तो याद रखनी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं जब पढ़ाया था तो ये भी बोला था कि ये कम्युनिकेशन में बहुत इस्तेमाल होता है, जब आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वगैरह करते हैं तो आपको ये प्रॉपर्टी काफ़ी देखने को मिलती है ना, तो इसको आपको याद रखना है। अब इसी प्रॉपर्टी से हम ये वाला क्वेश्चन भी बना लेंगे, देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए, आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि e टू द पावर माइनस 5 ऑफ मॉड t और आपको साइन ऑफ 10t आपको बोल रहा है ना। तो अपन ये मानते हैं कि चलिए ये वाला जो सिग्नल है ये अपना f ऑफ t है, और ये क्या किए हैं, f ऑफ t में हम साइन t 10t मल्टीप्लाई कर दिए। तो पहले अपन क्या करते हैं, साइन ऑफ f ऑफ t इंटू साइन ऑफ 10t अपन निकालते हैं, है ना। तो बेसिकली देखिए, पहले तो f ऑफ t का f ऑफ ओमेगा निकालना जरूरी है कि f ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ ओमेगा होता है। तो f ऑफ t का इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e टू द पावर माइनस 5 ऑफ मॉड t का। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था e टू द पावर माइनस a मॉड t का क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही इस मॉड्यूल के कंप्लीट किया था, वो है 2a बाय a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है ना। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख के आइए, तब आपको क्लियर हो गई चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 इंटू ए क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 5 बाय 5 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपका e टू द पावर माइनस 5t आ गया। अब आप क्या किए, e टू द पावर माइनस 5 मॉड t में आपने क्या कर दिया, साइन ऑफ 10t मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोई भी सिग्नल में आपने साइन ओमेगा नॉट t मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, उसका 1/2j हो जाता है ना। तो 1/2j हो जाएगा, 5 टू द 10, तो यहाँ 10 अपन लिख लेते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि उस सिग्नल में ओमेगा की वैल्यू में चेंजेस आएगा, जैसे 5 स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस आपका, अच्छा ये साइन है इसलिए माइनस 1/5 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओमेगा प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस मेथड में। तो देखिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉल्व करना बहुत ही आसान है, क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। जैसे इतने बड़े बड़े सिग्नल्स का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने बोलेगा तो आप इंटीग्रेशन से जाएंगे तो आपकी तो हालत ही खराब हो जाएगी, लेकिन आप इंटीग्रेशन से मत जाइए, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो प्रॉपर्टीज पे आप कमांड बना लीजिए, प्रॉपर्टीज को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन को देख के प्रॉपर्टी ही लगानी है उसको, आप प्रॉपर्टी से सॉल्व करिए, आपका फट से आंसर आता है। स्टैंडर्ड सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के एक बार उसको याद कर लीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत जरूरी होता है, याद रखना। उसी से हम फटफट इसको बनाते हैं। अभी जैसे मेरे को e टू द पावर माइनस 5 मॉड t का मेरे को अगर नहीं याद आता फोरियर ट्रांसफॉर्म तो फिर मेरे को इसमें दिक्कत होती, लेकिन अगर मेरे को ये याद है तो फिर इससे मैं फटफट बना लिया। तो गेट में जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप बनाने की कोशिश करिए तो ज़्यादा फायदा होता है ना। आपको एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग लेके चलते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने कोई बोलता है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका, f ऑफ, मान लीजिए आपको बोलता है 7 ओमेगा प्लस 9। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए, इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका निकालना है। अब आपको पता है कि f ऑफ ओमेगा का फोरियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, f ऑफ t, है ना। तो अगर आप f ऑफ ओमेगा प्लस 9 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ, ठीक है, t तो रहेगा ही e टू द पावर माइनस j9 इंटू टी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी याद आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि कभी भी f ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अगर आप किया जाता है तो
इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया जाता है तो होता है एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर ओमेगा में हमेशा उल्टा होता है, तो यहाँ पे माइनस जे ओमेगा नॉट टी आ जाता है ना। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, तो आप इसको बना लेंगे फट से। उसके बाद हम आगे आते हैं, आपको एफ ऑफ 7 ओमेगा प्लस 9 चाहिए है ना। तो 7 ओमेगा प्लस 9 में आप क्या करेंगे, तो आपको फ्रीक्वेंसी स्केलिंग कर लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी स्केलिंग करने के लिए आपको क्या किया, 7 मल्टीप्लाई किए, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा t/7 और यहाँ 1/7 और यहाँ पे भी आपको e टू द पावर माइनस जे 9 t/7। तो ये है फाइनल आंसर। कितना आसान है इस चीज को सॉल्व करना। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको अगर प्रॉपर्टीज याद है तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम एक काम करते हैं, हम ना आपको लेके चलते हैं साइन पल्स की तरफ। चलिए ये है एक, देखिए साइन असल में क्या होता है, साइन ऐसा ऐसा जाता है और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, आपको एक यूनिट स्टेप सिग्नल है, मान लीजिए एक पल्स सिग्नल है, 0 से मान लीजिए पाई तक ही जा रहा है। तो 0 से पाई वाले सिग्नल, इन दोनों सिग्नल को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, कन्वोल्यूशन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा फाइनल ये कुछ ऐसा, सिर्फ इतना, क्योंकि बाकी सब तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो ये आएगा 0 से पाई, ठीक है, और ये वैल्यू अपन 1 मान के चलते हैं। तो ये, तो देखिए आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है अल्टीमेटली आपको ना इस वाले जो सिग्नल है, ये वाला जो सिग्नल है, इसका आपको बोल रहा है कि भैया इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के बताइए। अब आपको तो ये पता है इसका कि ये सिग्नल कैसे आएगा, ये सिग्नल आएगा कि जब आप गेट पल्स को, एक गेट पल्स को, ये वाले जो, इसको अगर अपन एफ ऑफ टी मान लेते हैं, तो अगर आप एफ ऑफ टी को जब आप साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये साइन ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपका आंसर, मतलब बेसिकली ये, इसको अपन जी ऑफ टी माने तो इसको अपन जी ऑफ टी बोल सकते हैं। मतलब जब आप एफ ऑफ टी को इस सिग्नल साइन टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको जी ऑफ टी मिलता है। तो अल्टीमेटली आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है कि इसका आपको जी ऑफ ओमेगा निकालना है, इसका आपको जी ऑफ ओमेगा निकालना है। तो आप इसका जी ऑफ ओमेगा, मतलब बेसिकली इसका भी अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं तो अल्टीमेटली आपको जी ऑफ ओमेगा मिल जाता है। अब एफ ऑफ टी का देखिए, एफ ऑफ टी इंटू साइन टी, तो आप समझ सकते हैं कि साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इधर उधर शिफ्ट करेगा, 1/2 जे एम्पलीट्यूड डिवाइड करेगा, तो ठीक है। एफ ऑफ टी निकालना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या है, एफ ऑफ टी आपको निकालना आना चाहिए। तो एफ ऑफ टी निकालने का सबसे अच्छा आसान तरीका है, देखिए आपको ये है एफ ऑफ टी 0 से पाई के रेंज में 1, इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। क्या आपको पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि गेट पल्स मान लीजिए -t/2 से t/2 अगर जा रहा है और एम्पलीट्यूड 1 है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है, लेट सपोज ये आपका a है, तो आपका सामने आता है एरिया, तो एरिया a इंटू टी होता है, सिंक फंक्शन होता है, सिंक फंक्शन, और आता है ओमेगा इंटू विड्थ डिवाइडेड बाय 2, तो विड्थ क्या है, t है, तो t/2 आ जाता है। ये इस सिग्नल का, गेट पल्स का ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है। लेकिन ये सिग्नल तो गेट पल्स से थोड़ा सा अलग है। वो कितना अलग है, अभी देखिए, मान के चलिए कि ये t/2 को, t को मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज कि t आपका π/2 है ना, t सिर्फ पाई है, लेट सपोज t आपका पाई है, तो आप इस सिग्नल को कैसे लिख सकते हो, -π/2 से π/2, और यहाँ पे a की वैल्यू लेट सपोज 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसमें इसको वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू 1, t को पाई, तो पाई सिंक या सैम्पलिंग फंक्शन आप लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी क्या है, π/2 ये है। अब आप ये सिग्नल को आप क्या करिए, इस सिग्नल को ना आप शिफ्ट कर दीजिए। कितना शिफ्ट करेंगे आप, π/2 आप शिफ्ट कर दिए डिलेड वर्जन में, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिए, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा क्या, 0 से π/1। अब आपने क्या किया है, शिफ्ट किया है, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी शिफ्टिंग तो होगा ही। तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, पाई सिंक ऑफ ओमेगा इंटू π/2, तो आपने किया e टू दी पावर, ठीक है, टाइम में आपने शिफ्ट किया, ठीक है, आपने इसको टाइम में शिफ्ट किया, तो फ्रीक्वेंसी में जैसे आपने क्या किया, एफ ऑफ, मान लीजिए ऊपर वाला ये वाला जो सिग्नल था, लेट सपोज कि ये आपका एच ऑफ टी है ना, तो आपने अल्टीमेटली सिग्नल क्या किया, एच ऑफ टी में, एच ऑफ टी को एच ऑफ टी प्लस आपने जो भी आपका
टी था उसमें आपने पाई बाई टू शिफ्ट किया है ना, पाई बाई टू आपने शिफ्ट किया है, और वो भी कहाँ किया है, राइट हैंड साइड किया, तो टी माइनस में आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा e टू द माइनस जे ओमेगा पाई बाई टू, ये आपका आ गया। अब बेसिकली देखिए क्या ये सिग्नल और ये सिग्नल बराबर है, ये सिग्नल बिल्कुल बराबर है। तो आप अल्टीमेटली हमको निकालना क्या था, हमको ये पोर्शन का हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के लाया है। अब आप क्या करेंगे, आप f ऑफ t को sin t से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जब भी आप f ऑफ t को sin t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है ना कि 1/2j हो जाना है, और f ऑफ ओमेगा माइनस यहाँ पे 1 हो जाना है, माइनस f ऑफ ओमेगा प्लस 1 हो जाना है, ये आपको पता है। तो आप क्यों ना इसको करके देखें भाई, f ऑफ ओमेगा तो आपको पता है, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इस वैल्यू को यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/2j कर दीजिए, पाई सामने था तो पाई आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंक ऑफ, ठीक है। और आप वैसे तो e टू द पावर माइनस, हाँ ये भी आप कर सकते हैं, सिंक ऑफ ओमेगा इंटू पाई, ओमेगा को आप कर लीजिए -1, ठीक है, ओमेगा -1 पाई बाई टू, ठीक है, e टू द पावर क्या होगा, e टू द माइनस जे ओमेगा -1 पाई बाई टू, ठीक है, माइनस सिंक ऑफ ओमेगा प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, ठीक है, ये हो गया, और e टू द पावर माइनस जे ओमेगा प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, सिंपल सा। तो देखिए ये कितना आसान था इसको सॉल्व करना, अगर आपको ये चीज़ आता है तो। देखिए अगर आपको कोई ऐसा सिग्नल दे दिया है, अचानक से आपके एग्जाम में आता है ऐसा सिग्नल, अगर ये सिग्नल आपको दिया है तो ये सिग्नल आपको बेसिकली लगेगा कि ये कितना टफ है इसको सॉल्व करना, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है सॉल्व करना। अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो प्रॉपर्टी से इसको आसानी से आप दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करिए और उसका प्रॉपर्टी निकाल के आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ऐसा कुछ है आपका टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी स्केलिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। Okay, so let's move on further and we'll see some more property with respect to our Fourier transform. So we'll see time differentiation property. Time differentiation property. So we have seen this property in our Fourier series also. It is same as that of Fourier series. So it means that if our ft is Fourier transform of ft is f of omega, then if we do time differentiation like d by dt of f of t, we'll get Fourier transform as j of omega multiplied by f of omega. Okay, so in both what is the difference is we are doing different time differentiation, and what we are getting the multiple of j of omega in f of omega, just this much only. If we are doing more differentiation, like see, if we are doing d2 by dt square double differentiation of f of t, what we will get Fourier transform of j omega square of f of omega. If you are doing d to the power n by dt to the power n f of t, how much differentiation will do? You will get proper Fourier transform j omega to the power n, whatever differentiation order differentiation you are doing f of omega. So this is your time differentiation property, and by using this property also many questions can be solved. So we'll solve some difficult question like that of our triangular pulse. So we'll solve with this only. Let's see, if you have been given a question, let's suppose this question is there. Okay, this question is there, this is in time domain, and let's suppose this value is minus t and this value is t, and this value is, let's suppose, 1. Okay, fine. So this is your actually f of t, and you have been asked to find Fourier transform of f of t. What will be the Fourier transform of f of t? So how will you proceed? Okay, आपका अप्रोच कैसा होने वाला होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को
डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन वाले में लगा सकते हैं सॉल्यूशन, वहां से भी आपको आंसर आ जाएगा लेकिन लंबा जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसका ना, ऐसे देखें तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो हम एक काम करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा कि वो पल्स सिग्नल में आ जाएगा, और पल्स को तो हम सॉल्व करना आता है। आपको पल्स भी नहीं आता तो और आप डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, इम्पल्स में ले जाइए, इम्पल्स को तो आपको आता होगा, तो आप कहीं से भी ले चलिए आपका आंसर आ सकता है। तो चलिए हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो आपका क्या होगा, आपको पता है कि मैंने आपको मॉड्यूल 1 में भी पढ़ाया है कि क्या डिफरेंशिएशन में क्या होता है। ये जो रैंप सिग्नल है, रैंप का डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्टेप, और स्टेप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जैसे -t से ये वैल्यू चलता है पॉजिटिव स्लोप की तरफ है, इसका स्लोप वैल्यू क्या है, आप करेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 1 माइनस 0 0 ऑफ माइनस माइनस टी, तो आपका इसका आ जाएगा +1/t के स्लोप के साथ ये आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे -1/t स्लोप से ये डाउन हो रहा होगा। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो मैग्नीट्यूड है, ये वाला जो मैग्नीट्यूड, ये स्लोप का, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, और यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है तो ओवरऑल यहाँ पे आपका आ जाएगा नेगेटिव, कहाँ तक, टी तक, टी, और ये -t तक। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1/t, और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1/-1/t। अब मुद्दा ये आ चुका है कि इस सिग्नल का, क्योंकि f ऑफ t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होना था वो f ऑफ ओमेगा होना था कायदे से, और f ऑफ ओमेगा ही आपको खोजना है। तो इस सिग्नल का, क्योंकि ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल उस सिग्नल का d/dt है ना, ये वाला जो ये वाला सिग्नल है, ये इस सिग्नल का d/dt है। तो कायदे से इसका जब फोरियर ट्रांसफॉर्म आप निकालेंगे तो आएगा j ओमेगा ऑफ एफ ओमेगा, मतलब इसका जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा कायदे से वो j ओमेगा इंटू एफ ओमेगा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस f ऑफ t का हम फोरियर d/dt किए हैं। तो टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो चलिए हम एक्चुअली में इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, और फिर उसको हम, क्योंकि ये भी फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसी का होगा, तो हम इसको इसको इससे इक्वेट कर देंगे। तो चलिए हम करते हैं, कोशिश करते हैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालें। अब आपको ये पता है कि ये सिग्नल दो टाइप के सिग्नल से बना हुआ है। एक आपको गेट पल्स तो पता है ना, गेट पल्स -t/2 से t/2 आपका जब 1 होता है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, t इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू t/2, ये आपका होता है ना, ये आपको पता होगा इसका। ओके अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस सिग्नल को, इसी का हम पूरा हेल्प लेंगे। इस सिग्नल को अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, किधर शिफ्ट करेंगे, लेट सपोज कि आप इस सिग्नल को इधर शिफ्ट कर दें थोड़ा सा, ठीक है, ये सिग्नल इधर आ गया, मतलब आपने ये, अगर इस सिग्नल को मैंने g ऑफ t माना है तो ये वाला जो सिग्नल होगा वो क्या बनेगा, g ऑफ t प्लस t/2, मतलब आपने इसको इधर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया -t 0, और आपने इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज करना है, आपको इसका एम्पलीट्यूड करना है 1/t, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली हमको 1/t वाला एम्पलीट्यूड चाहिए, है ना। तो ये आप यहाँ पे, तो क्या ये सिग्नल वैसा ही दिख रहा है क्या, ये वाले पोर्शन का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूँ, इसको सेकंड मान लूँ, तो फर्स्ट कंपोनेंट जैसा ही दिख रहा है, और फर्स्ट कंपोनेंट का ये आपका ऐसा आ गया। आपसे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ठीक है, इसका, ठीक है, अपन क्या करते हैं बाद में अपन देखेंगे। एक और अपन सिग्नल लेते हैं, इसी g ऑफ t को हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो कुछ वो ऐसा वैल्यू आ जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड रिवर्सल भी ले लेंगे, तो मैग्नीट्यूड रिवर्सल कुछ ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया t और -1/t हो गया। तो इस सिग्नल को हम कैसे लिख सकते हैं, इस सिग्नल को हम लिख सकते हैं -1/t, इसको आप पूरा लिखे नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए था 1/t g ऑफ t प्लस t/2। ये बेसिकली इस सिग्नल को ये दर्शा रहा है ना। वैसे ही इस सिग्नल को ये दर्शाएगा -1/t g ऑफ t माइनस t/2, ये सिग्नल। तो अल्टीमेटली आप इस सिग्नल की बात कर रहे हैं ना, इस सिग्नल को, तो इस सिग्नल को हम लोग कैसे लिखा जा सकता है, अगर ये सिग्नल आपका, ये वाला जो सिग्नल है ये आपका g ऑफ t है, तो आप इस सिग्नल को f ऑफ t को कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ ये जो
डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी है, इसको आप लिख सकते हैं कायदे से। ये वाले सिग्नल को मैं यहाँ पे रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, चलिए आई थिंक रेड से, हाँ ये इससे, इस सिग्नल को आप लिख सकते हैं जी ऑफ, पहले तो 1/t लिख लीजिए, जी ऑफ टी प्लस टी बाई टू माइनस 1/t जी ऑफ टी माइनस टी बाई टू। कायदे से ये लिखा जा सकता है ना। देखिए यही चीज हुआ ना, 1/t जी टी प्लस टी बाई टू जी माइनस 1/t जी टी माइनस टी बाई टू, ये हुआ। ओके फाइन, अभी तक हम लोगों को ये समझ में आ चुका है। देखिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है, सिंपल इस क्वेश्चन को आपको एफ ऑफ ओमेगा निकालने बोल रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले सिग्नल को आप डी बाई डी टी कर लेंगे, तो कायदे से राइट हैंड साइड पे भी जे ओमेगा इंटू एफ ओमेगा आ जाएगा। इस सिग्नल को अगर आपको आपको पल्स सिग्नल के फॉर्म पे लिखना है, अगर आप इस सिग्नल को जी ऑफ टी मान रहे हैं तो इस सिग्नल को आप लिख सकते हैं इसके फॉर्म में, क्योंकि इस सिग्नल का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म जानते हैं, हमको इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को जानते हैं, तो हम इसको लिखना बड़ा आसान है। मतलब देखिए अगर आपका यहाँ फिर से लिख लेता हूँ मैं, जी ऑफ टी, ठीक है, का फोरियर ट्रांसफॉर्म है टी इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू टी बाई टू, है ना। ये आपका जी ऑफ टी का था, ठीक है, जी ऑफ टी का था। अच्छा इसमें एक काम करते हैं हम, जी ऑफ टी में, हाँ ये काम ठीक है, चलते हैं कोई बात नहीं। तो अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है 1/t जी ऑफ टी प्लस टी बाई टू, और एक बार निकालना है माइनस, यही निकालना है ना आई थिंक, हाँ यही निकालना है। और एक बार इसमें हमको करना है माइनस 1/t जी ऑफ टी माइनस टी बाई टू, ये हमको टोटल निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं इसका। अगर जी ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है तो 1/t का क्या होगा, 1/t जी टी प्लस टी बाई टू, मतलब आपको करना पड़ेगा 1/t तो है सामने, आपको t मल्टीप्लाई है सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू टी बाई टू ई टू द पावर j इंटू ओमेगा इंटू टी बाई टू, यही आपको करना है। आपको मालूम है ना कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ टी अगर f ऑफ ओमेगा होता है तो f ऑफ t प्लस t क्या होता है, f ऑफ ओमेगा इंटू ई टू द पावर j ओमेगा t, ये आपका टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो आपने इसको भी सॉल्व कर लिया, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर आपका यहाँ पे आ गया माइनस 1/t तो रहेगा ही, t आपका रहेगा, आप कर सकते हैं सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू टी बाई टू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी बाई टू, ठीक है ये हो गया। तो अल्टीमेटली जो आपका सिग्नल था, जो आपका ये वाला सिग्नल था, ये वाला सिग्नल, ये दोनों का एडिशन है ना, दोनों सिग्नल का एडिशन है। तो अल्टीमेटली आपका जो एफ ऑफ टी है, या आप डी बाई डी टी एफ ऑफ टी जो है, अल्टीमेटली इन दोनों का समीशन है 1/t जी ऑफ टी प्लस टी बाई टू माइनस 1/t जी ऑफ टी माइनस टी बाई टू का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका सैम्पलिंग ऑफ, एक काम करते हैं क्या, सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू टी बाई टू को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी बाई टू माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी बाई टू। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं क्या कि आप यहाँ पे 2j डिवाइड कर दें और यहाँ पे 2j मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2j इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टी बाई टू, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी बाई टू, जिसमें आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है इतना हो गया, ये चीज़ें हो गई, अच्छी बात है। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया है कि इसको इक्वेट किससे करना है, असल में एक्चुअली इससे इक्वेट करना है, क्योंकि असल में इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये भी होता है, और हम लोगों ने जो निकाला है वो है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना अपन। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं जे ओमेगा एफ ऑफ ओमेगा, क्योंकि हमको अल्टीमेटली तो एफ ऑफ ओमेगा ही चाहिए, तो जे ऑफ ओमेगा को इधर ले जाइए, तो आपका आ जाएगा 2j बाय जे ओमेगा इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टी बाई टू इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी बाई टू। अब आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको आप करें जे कैंसिल, 2 तो है, एक काम करते हैं हम, सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टी बाई टू है, ठीक है, सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टी बाई टू, एक मिनट, हाँ
सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टी बाई टू है, यहाँ पे आपका है साइन ऑफ ओमेगा टी बाई टू। इसको हम लोग नीचे, ओमेगा तो है ही, तो ओमेगा तो रहता ही है। एक काम करते हैं, टी हम लोग नीचे जोड़ देते हैं, यहाँ पे टी यहाँ पे नीचे जोड़ देते हैं और सामने भी टी यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर का टी है उसको अपन एक काम करते हैं नीचे ले जाते हैं, उसको हम लोग एक काम करते हैं नीचे ले जाते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टी इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टी बाय टू, और इसको भी आप लिख सकते हैं सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टी बाय टू, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं टी इंटू सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा इंटू टी बाय टू। देखिए अब असल में ये एफ ऑफ ओमेगा आ गया, यही हम निकालना चाह रहे थे। मतलब अगर मैं आपको फिर से रियल टर्म में बताऊं तो एक सिग्नल आपको दिया गया था ये माइनस टी से टी, है ना, और यहाँ वन था, इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने वाला था। उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आया, ये निकल के आया टी ऑफ सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा टी बाय टू। हाँ, तो आपको याद होगा कि हमने एक गेट पल्स निकाला था माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आया था टी ऑफ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टी बाई टू। यहाँ पे जो टी बाई टू था ये विड्थ बाय टू था, यहाँ पे भी जो टी बाई टू है ये विड्थ बाय फोर है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ कि ये वाला जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस के विड्थ बाय फोर के। आप देख लीजिए यहाँ पे टू टी है, टू टी का फोर करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब आपको टी बाई टू मिलेगा। और ये जो पार्ट है ये हमेशा एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस, बेस मतलब टू टी इंटू हाइट वन, तो आपको निकल जाएगा टी, है ना। तो यहाँ पे भी यही बताया गया था कि ये वाला जो चीज़ है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो है ये विड्थ बाय टू को रिप्रेजेंट करता है ना। यहाँ पे विड्थ टी है, टी बाय टू अपन कर दिए। तो गेट पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा होता है, और आपका ट्रायंगुलर पल्स का ऐसा होता है। ये ट्रायंगुलर पल्स भयंकर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन देखिए हम कहाँ से निकाले हैं। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं समझ में आता है तो आप एक काम करिए, इसका और ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये सिग्नल है, इसका एक और डिफरेंशिएशन कर लीजिए तो आपको इम्पल्स के फॉर्म में मिल जाएगा। फिर इम्पल्स से आप क्या करिए, इक्वेट कर, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिएगा और उसको जे ओमेगा स्क्वायर एफ ओमेगा से इक्वेट करिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अल्टीमेटली आंसर यही आना है, क्योंकि ट्रायंगुलर पल्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो यही होता है, टी एरिया इंटू सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर इंटू ओमेगा, अंदर में ओमेगा इंटू विड्थ बाय फोर, यही इसका मेन पोर्शन होता है। तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको कोई बोलता है कि भैया ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आपको कोई अचानक से, जिससे मान लीजिए आपको ये सिग्नल दिया हुआ है, लेट सपोज आपको एक क्वेश्चन में दिया है, ये बोल रहा है माइनस फोर फोर और ये आपको टू दिया हुआ है ना, आपको बोलता है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए, है ना, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आप क्या करेंगे, आपको स्टैंडर्ड पता है ना, स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से सामने क्या आता है, मैग्नीट्यूड में एरिया आता है। तो आप एरिया निकाल लीजिए, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 8, इंटू हाइट कितना है 2, तो आपको आ जाएगा 8। तो यहाँ पे 8 आप लिख लीजिए, सैम्पलिंग स्क्वायर लिख दीजिए, ओमेगा कर लीजिए, और विड्थ बाय 4 होता है ना। तो विड्थ कितना है 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना होता है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका आंसर होगा 8 सैम्पलिंग स्क्वायर 2 ओमेगा, ये है इसका आंसर। देखिए अगर आपको स्टैंडर्ड वाला सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना आता है, आपको अगर याद हो गया है, तो आपको कितना आसानी से 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ गया, ठीक है। नहीं तो आप क्या करते हैं, सॉल्व करते रहते। तो आपको बेसिक समझना चाहिए, उसके बाद आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वाला पोर्शन आपको कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा, चलिए एक आध क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क की तरफ दे देता हूँ। आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप में अगर एडेड होंगे तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे को बताइएगा कि अगर मान लीजिए एक सिग्नल है आपका, मान लीजिए ये सिग्नल है, ठीक है, ये 0 से 4 आपका वैल्यू है और ये मान लीजिए 1 है ना। ये सिग्नल को अगर मैं एफ ऑफ टी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो एक काम करिए, इस सिग्नल को बेसिकली आप क्या निकालिए, इसका इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप निकालिएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये आपका होमवर्क हुआ। ये होमवर्क आप टेलीग्राम ग्रुप में आप इसका सॉल्यूशन करिए,
और सॉल्यूशन का स्नैपशॉट खींच के आप उसको टेलीग्राम में डालिएगा, मैं ज़रूर देखूंगा उसको और फिर मैं वहाँ आपको बता दूंगा कि सही है कि गलत। अगर आपका गलत होगा तो वहाँ पे मैं आपको सही सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका इस लेक्चर के लिए होमवर्क रहेगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हम लोगों ने टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी देखी, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी आप हर किसी में नहीं लगा सकते। जैसा मैंने आपको फोरियर सीरीज में भी बोला था, वही सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी बोलूँगा कि भैया बड़े बड़े जैसे टफ सिग्नल्स हैं, टफ सिग्नल को आप क्या करेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा टाइम डिफरेंशिएशन लगा लगा के आपको जे ओमेगा ही तो करना है, या जे ओमेगा स्क्वायर जो भी करना है आपको, आप वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन हमेशा जैसे डीसी सिग्नल का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। तो अगर आपको कहीं पे कहीं डीसी पोर्शन है उसको भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं और वो 0 पोर्शन आ रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, है ना। हाँ, तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका एफ ऑफ टी में मतलब ये टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हर जगह नहीं लगाई जा सकता। अगर कोई जैसे मान लीजिए ये सिग्नल में हम टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही सिग्नल कुछ ऐसा बोलता तो, ये सिग्नल ऐसा और ऐसा होता तो, और ये ऐसा होता, तो फिर आप बोलते कि ये तो इसमें कुछ डीसी वैल्यू एडेड है। यहाँ पे आप अगर इसका वैल्यू निकालेंगे टाइम डिफरेंशिएशन करके, या फिर आप इसको ऐसा ऐसा करके ये वाला सिग्नल का निकालेंगे, या फिर आप इसको मान लीजिए ऐसा ऐसा ये सिग्नल का निकालते हैं, सबका आपका जो टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो प्रॉपर्टी आपकी सेम आएगी क्योंकि डीसी वैल्यू 0 हो जाती है। तो दिस प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन केयर ऑफ कि टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में हर सिग्नल्स के लिए अप्लाई नहीं होता। जिस सिग्नल में डीसी वैल्यूज है उस सिग्नल में आप टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। बाकी सब में तो आराम से हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम डुअलिटी के बारे में बात करेंगे कि डुअलिटी क्या होता है। फिर हम एरिया प्रॉपर्टी की तरफ डील करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। इफ यू हैव लाइक द वीडियो और देन डू शेयर इट and subscribe the channel, and don't miss the bell icon and join our telegram group also. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।